Okay, so good morning, guys. Yeah, so today we will be completing our derivation of the small oscillation which we left in the last class because of my silly mistakes of adding less slides. Okay, coming back to doing the derivation for your small oscillation. So, okay, let me take, yeah. Okay, so in the last class, we stopped at this point, right? So we derived the expression for the potential energy. We were calculating the potential energy. What did we do? We had an expression for V Q1, a small recap of what we did, right? So we had this. यहाँ तक याद है? We had the expression for the potential energy. And what we tried to do the Taylor expansion of this expression. So we did the Taylor expansion and we did it about the equilibrium points, right? So I will not be repeating what are equilibrium points, what are these coordinates. We all know we had n generalized coordinates. We are trying to solve the problem of solving small oscillations when we have n number of generalized coordinates. So these q1, q2, q2, q3, etc. till qn are the n generalized coordinates. And we did the Taylor expansion of this potential expression about the equilibrium points, and we found that then we used a notation. The notation that we used was that eta I is equal to qi minus qi naught. That is the displacement in the ith coordinate from the equilibrium point, and eta j was qj minus qj naught. That is the displacement from the equilibrium point in the jth coordinate. These were the notations that we use to make our life easier. And what we found finally at last. I will write the expression where I ended. Okay, we found that the V, uh, which was a function of till n, eta n, it's not eta, it's eta n is equal to, we had some V naught plus we had half summation over I, summation over j, and del square V by del eta I, del eta j, eta I into eta j. This is what we did. Then we did one more thing. We said that okay, let's just say this V naught is 0 to make our life easier, because ये V naught क्या करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम को जस्ट ट्रांसलेट करेगा, राइट? क्योंकि इट इज जस्ट इन एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट. जब मैं अपना हैमिल्टोनियन निकालूंगी या मैं अपना लैग्रेंजियन निकालूंगी एंड आई विल बी फाइंडिंग माय इक्वेशंस ऑफ मोशन, आई नो इसका डिफरेंशिएशन करते ही ये खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये एनर्जी की वैल्यू को बस ट्रांसलेट कर रहा है. ये ग्राफ को या तो थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाएगा या थोड़ा सा नीचे लेके चला जाएगा, डिपेंडिंग ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इसका कुछ रोल नहीं है मेरे इक्वेशंस ऑफ मोशन में. और मेरे को कितनी स्मॉल ऑसिलेशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसीलिए मैं इसको जीरो मान लेती हूँ. मैं इसको बार बार उठा के ना लेना नहीं चाहती अपनी डेरिवेशन में आगे. तो लेट्स जस्ट से दैट दिस इज जीरो, लेट्स जस्ट सपोज दिस इज जीरो. So we said that, okay, so V, I'm not writing the complete bracket, is equal to half summation over I, summation over J, del square V by del eta I, del eta J, eta I into eta J. Okay, यहाँ तक हमने कर लिया, right? Now what we will do, now हमने पढ़ना था कि अब इससे हम लोग समझ क्या सकते हैं. How does this make our life easier? हमने इतना सारा कैलकुलेशन करा डेरिवेशन का, बट इसका फायदा क्या है? हम मतलब कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना इसका. तो हमने क्या करना है, we will say that this del square V by del eta I del eta J is a matrix. Okay, and we will say that this matrix is the potential energy matrix. So very easy. What do we say? That we have a potential energy matrix, ठीक है, जिसके indices are I and J. So I am calling this matrix as Vij. Vij are what? These are just the elements of this potential energy matrix. अगर I और J 1 1 है तो that is my first row first column element. 1 2 है तो first row second column element. ठीक है, Vij, I and J are my indices of the matrix, the potential energy matrix, and this I have defined as
हाफ del square B by del eta I del eta J. This is the definition of my potential energy matrix. If I put the definition of this potential energy matrix, okay, so we have not taken a half. Let me just rub it. So we are just calling, I'm not keeping the half in here. This Vij is the potential energy matrix and it is given by del square V by del eta I into del eta, del eta J, right? So V, the expression for the potential energy now becomes what? Half, okay? We have summation over I, summation over J. We have this Vij, eta I into eta J. And this is all what? This is my potential energy matrix. And I am calling it half some capital V eta I into eta J. That is my expression for the potential energy. Fine. So we have what? We have the expression of the potential energy in terms of the potential energy matrix. Easy to understand? Now let me write it बहुत simplified way में. The things that you need to remember. Derivation exam में नहीं आती है. Derivation is for your own understanding, right? हमें समझ भी तो आना चाहिए ना, हम जो चीज कर रहे हैं वो चीज आई कहाँ से है. और अगर डेरिवेशन आसान है तो करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? हाँ तो भाई ऐसी अगर कोई गंदी सी डेरिवेशन हो कि क्या क्या ही करना, छोड़ो ना, फॉर्मूला फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट क्योंकि डेरिवेशन आसान है तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, राइट? कि एक चीज आ कहाँ से रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आसान है डेरिवेशन, मुश्किल है तो फिर इससे हो जाए. ओके, सो व्हाट डिड वी डू टिल नाउ, राइट? तो हमने अपने पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को, दैट इज V इज इक्वल टू रखा हाफ Vij eta I into eta J, where Vij are what? It is the potential energy matrix. Okay? It is the potential energy matrix. Simple. Similarly, हम काइनेटिक एनर्जी को इतना डेरिवेशन वेरिएशन नहीं, हम कहते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इफ आई कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से, कैन आई राइट द काइनेटिक एनर्जी? यस. सो बाय एनालॉजी हमने क्या करा, हमने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज टी, काइनेटिक एनर्जी को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ टी आई जे eta I dot into eta j dot. Why eta I dot and eta j dot? Because we know कि काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना काइनेटिक एनर्जी का. it actually depends upon x dot, y dot and z dot. It doesn't depend upon x, y, z. नहीं करती ना, बट किस पे डिपेंड करती है? x डॉट पे, y डॉट पे, z डॉट पे. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ टी आई जे ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट. ठीक है? नाउ दिस टी आई जे इज माय काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स. ओके, so this Tij is my kinetic energy matrix and Vij is my potential energy matrix. And what is the definition of these two matrices? I'm just writing the things that you need to keep in mind for answering a question. जो चीज आपको याद रखनी है, डेरिवेशन हो गई है, डेरिवेशन हमारी पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स निकालने की तक की थी. अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि हमें याद क्या क्या रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फाइन. तो हमें एक एक्सप्रेशन v का याद रखना है कि v को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक एक्सप्रेशन मैंने t का याद रखना है कि मैं t को ऐसे लिख सकती हूँ. अब हमें याद रखना है द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स. फाइन. तो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स, जो कि हमने निकाला भी था. तो जो Vij है दैट इज एक्चुअली डेल स्क्वायर V. तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा उसको आपने क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है. एक बारी करना है ईटा आई के साथ, एक बारी करना है ईटा जे के साथ, एंड दैट विल गिव मी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर, कुछ भी नहीं करना. ठीक है? सिंपल 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 काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स. अब बाय एनालॉजी व्हाट वी डिड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन वाज, हमने बस ईटा आई और ईटा जे के ऊपर डॉट डॉट लगा दिया था, है ना?
और हमने वी आई जे की जगह टी आई जे लिख दिया था। तो टी आई जे क्या होगा? अब आधे बच्चे तो मुझसे पहले ही लिख चुके होंगे कि क्या होगा, बट मैं, लिखना हमारा धर्म है। डेल ईटा आई डॉट ईटा जे, ठीक है। This is my expression for the kinetic energy matrix. So we have the expression for the potential energy matrix. We have the expression for the kinetic energy matrix. And one thing you have to remember. What do you have to remember? The notation. ठीक है? So what do we have to remember? So I am always putting the notations for you कि आप notation ना भूल जाओ कहीं पर। Notation याद रखना बहुत important है। We have eta 1 is equal to q1 minus q naught। मतलब ईटा 1 इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेट 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, Q1 माइनस Q1 कोऑर्डिनेट का इक्विलिब्रियम पॉइंट इज Q1 नॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1 का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को ईटा आई लिखना हुआ तो वो क्या होगा? QI माइनस QI का इक्विलिब्रियम पॉइंट। फाइन, दिस इज माय नोटेशन। और जब हमने क्या करा था, हमने डिफरेंशिएशन करा था, तो हमने ये चीज देखी थी कि जो डी ईटा आई है वो एक्चुअली डी क्यू आई के बराबर, राइट। कि जो डी ईटा आई है वो डी क्यू आई के बराबर था। इसका मतलब ईटा आई डॉट क्यू आई डॉट के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, कुछ नया नहीं है, ये हम कर चुके हैं। बस इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें याद रहे लास्ट क्लास का एक बार थोड़ा सा कि क्या करा था, याद रहे कि भाई ये चीजें याद रखनी है, मतलब ये भूलनी नहीं है। ये जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, अगर इतना याद रखा हुआ है तो बहुत, अभी तक बहुत है। वो डेरिवेशन वेरिएशन पूरी, कि टेलर एक्सपेंशन करनी है, फिर ये करना है, वो करना है, वो नहीं याद तो चल जाएगा, ये भूल गए तो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर द लेग्रांजियन। ठीक है, अब लेग्रांजियन हमें पता है कि जो हमारा लेग्रांजियन है एल, उसकी डेफिनेशन होती है इट इज इक्वल टू टी माइनस पी, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टी और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास टी भी है, हमारे पास वी भी है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी पुट करते हैं तो हाफ टी आई जे, वी हैव ईटा आई डॉट eta j dot minus v, which is half vij eta I into eta j। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लेग्रांजियन की एक्सप्रेशन। अब जो हमारे पास एक बार लेग्रांजियन का एक्सप्रेशन आ गया, तो मुझे पता है कि लेग्रांजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे अगर लेग्रांजियन से निकालना है तो मैं करती हूँ डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल, अगर मुझे सपोज जे कोऑर्डिनेट का निकालना है, जेएच कोऑर्डिनेट का निकालना है, तो डेल ईटा जे डॉट माइनस डेल एल बाय डेल ईटा जे इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही लिखते हैं ना हम इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी भाई, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या है, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हम लोग लेग्रांजियन से लिख सकते हैं ना। इट इज द लेग्रांजियन से निकली हुई इक्वेशन ऑफ मोशन is my this, right? अब मैं क्या करूंगी, I have the expression for L, I will put this expression in this equation of motion and we will see what do we get, right? चलो भाई, यहां तक तो हमें याद रखना ही है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए, अब क्योंकि पिछली स्क्रीन पे गायब हो गया है, तो लेट मी सी। अगर आप डेल एल बाय डेल ईटा जे करो, अगर मैं डेल एल बाय डेल ईटा जे डॉट करूं, तो वो क्या आएगा? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एल में क्या बैठा है, ईटा जे डिपेंडेंट, बस ये वाली टर्म है ना। तो अगर मैं इसको डेल ईटा जे डॉट से करूंगी डिफरेंशिएट, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ हाफ टी आई जे और ईटा आई डॉट बचेगा। ईटा जे डॉट तो गायब हो जाएगा, तो इसको लिख लें एक बारी, तो हमारे पास क्या बचेगा? हाफ टी आई जे, और क्या बच जाएगा? ईटा आई डॉट। बस ये बचा, दिस इज माई डेल एल बाय डेल ईटा जे डॉट। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और मुझे पता है कि डी बाई डी टी मुझे इसका लेना है, इसका मुझे डी बाई डी टी लेना है।
तो अगर मैं इसका डी बाई डी टी लूं, है ना, अगर मैं इसका डी बाई डी टी लूं तो यहाँ पे डी बाई डी टी लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ टी आई जे तो बाहर आएगा, और क्या हो जाएगा, डी ईटा आई डॉट बाई डी टी। क्या मिल जाएगा मुझे, ईटा डबल डॉट। और डिफरेंशिएशन आ गया टी के टर्म्स में। ये जो डॉट है यहाँ पे, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी तो है। तो मेरे पास आ गया हाफ टी आई जे ईटा आई डॉट, राइट। let me see. Oh, I'm sorry. Yeah, this is what we had, right? अब जो मेरे पास यहाँ पे हाफ टी आई जे ईटा आई डबल डॉट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया है मैंने। मुझे क्या करना है, डेल एल बाय डेल ईटा जे को माइनस करना है इस वाली टर्म से। तो लेट अस फाइंड डेल एल बाय डेल ईटा जे, ये फाइंड कर लेते हैं। तो डेल एल बाय डेल ईटा जे क्या होगा, यहाँ पे कोई ईटा जे डिपेंडेंट टर्म है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे ईटा जे बैठा है। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल डिफरेंशिएट दिस। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो आई विल गेट माइनस हाफ वी आई जे ईटा आई। ईटा जे हट जाएगा, सिर्फ एक पावर है ईटा जे की, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस वन बाई टू वी आई जे ईटा आई। यही बच गया ना, यही बचा है, हाँ यही बचा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो ये थी कि मैं अगर पहले टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर दूं, दैट इज इक्वल टू जीरो। पहला टर्म इज दिस, हाफ टी आई जे ईटा आई डबल डॉट माइनस ऑफ माइनस विल गिव मी प्लस, है ना, हाफ वी आई जे ईटा आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हाफ तो कैंसिल हो जाए, हाफ तो कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आई जे ईटा आई डबल डॉट प्लस वी आई जे ईटा आई इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो है क्या है, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ डज दिस लुक सिमिलर टू यू इन एनी वे, हाँ, कहीं पे देखी देखी लग रही है। अगर मैं ईटा की जगह एक्स रख दूं, सपोज अगर मैं ईटा की जगह एक्स रख दूं, तो आपको ना ये कहीं पे देखी देखी लगेगी। कैसे देखी देखी लगेगी, आप, मुझे पता है एक इक्वेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन तो नहीं चलो, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन कहीं देखी है, देखी होगी, है ना। कहाँ पे देखी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखी है, कि अगर एक के है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऑसिलेशन हो रही हैं अबाउट द मीन पोजीशन, तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरीके की आती है। तो ये क्या है, ये एसएमएच की इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। और यहाँ पे ईटा है, ईटा क्या है, ईटा इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट। एक्स भी एक कोऑर्डिनेट है, ईटा भी एक कोऑर्डिनेट है। तो ये कुछ इस जैसी नहीं लग रही, है ना, सिमिलर है ना। क्यों सिमिलर है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने आ, एक ऑसिलेशन मोशन से ही तो स्टार्ट करी थी अपनी डेरिवेशन। जो हमने पोटेंशियल का फॉर्म लिया था, वो हमने लिया ही क्या, कैसा था, जिसके अंदर ऑसिलेशन पॉसिबल हो। तो हमारे को इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसी मिलनी थी, ऐसी ही तो मिलनी थी, है ना, ऐसी ही तो मिलनी थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखूंगी, तो उसका सॉल्यूशन कैसा लगेगा, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा लगेगा जैसा इसका सॉल्यूशन लगता है, राइट। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो इसका सॉल्यूशन जैसा है वैसा ही तो कुछ आएगा इसका भी सॉल्यूशन, क्योंकि सेम सेम फॉर्म है ना इक्वेशन की, इक्वेशन की फॉर्म सेम है। तो इसका सॉल्यूशन विल बी व्हाट, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी eta I is equal to ci, which is the constant or a scalar, and we have eta j। हम, अच्छा हमने eta I कर दिया, हाँ अच्छा eta I तो होगा इसका सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ, eta I is equal to ci, then we have ai, which is the amplitude, and we have e raised to power I omega t, okay. So the solution of this equation that we have written over here
is eta I is equal to Ci. What is this Ci? Ci is some scalar. Ai is the amplitude. Omega is the frequency. Fine. So this is my solution. This is my solution. अब what do we want? We will need to find ओमेगा. ठीक है, हमें ओमेगा चाहिए. ओमेगा कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन तो हमने बोल दिया कि ये है, बट अल्टीमेट एम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, राइट? तो स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फाइंड ओमेगा, और उस ओमेगा को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि ये जो एक हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्म है, अगर मैं इसको उठा के उस इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे कुछ तो मिलेगा ना. आई वुड गेट समथिंग जिससे मैं ओमेगा निकाल सकती हूँ, राइट? तो वही हमें करना है. हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को उठा के ऊपर की इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि हमने माना है ये सॉल्यूशन है. तो लेट्स जस्ट पुट दिस सॉल्यूशन इनटू द अबव इक्वेशन. तो अगर मैं इसमें डालूं तो we will get Tij and we have eta I double dot, right? Eta I double dot. तो Ci और Ai तो पहले ही बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट्स है ये, तो डिफरेंशिएशन में आएंगे ही नहीं. तो Ci Ai and we have e raised to power iota omega t and we are double differentiating it with respect to t. अब मैं एक एक स्टेप नहीं करूंगी, पहले d by dt निकाला, फिर d square by dt निकाला. हैबिट डालनी है साथ के साथ करने की. जब मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा नीचे. आयोटा का स्क्वायर विल गिव मी अ माइनस साइन एंड ओमेगा का स्क्वायर विल गिव मी ओमेगा स्क्वायर एंड ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी विल फाइनली रिमेन अनचेंज्ड. इजी. प्लस Vij and then we have Ci Ai e raised to power iota omega t is equal to 0. Okay. अब यहाँ से what we can do, let's take things out कॉमन लेते हैं चीजों को. तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल टेक सी आई ए आई एंड ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, दोनों से कॉमन लेते हैं. जब मैं इसको कॉमन लेके बाहर कर दूंगी, इसको कॉमन लेके बाहर कर दूंगी, आई जस्ट चेंज द स्लाइड. तो मैंने क्या करा, आई हैव सी आई ए आई ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी एंड नाउ व्हाट वी हैव इनसाइड द ब्रैकेट्स. लेट्स सी. यहाँ से अब ये नेगेटिव साइन है तो उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सुंदर लगता है ना, है ना. चलो. So we have Ci Ai e raised by iota omega t and then we have Vij over left over here, right? And we have minus Tij omega square left over here. तो मुझे दिख गया कि क्या बचेगा अंदर, Vij minus omega square Tij is equal to 0. अब ये तो 0 होने से रहा, this can not be equal to 0. तो दिस हैज टू बी 0. ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन को कि ये वाला तो हो नहीं सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए. तो लेट अस पुट Vij minus omega square Tij is equal to 0. Why I have put this okay? Because we know that these are matrices, right? अगर ये matrices हैं तो इनका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा. तो Vij and Tij are the potential energy and the kinetic energy matrices and they satisfy this equation. What is this equation called? This equation is called secular equation. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, secular equation बोलते हैं. This equation will help me in finding the omega for the small oscillations of any classical mechanics small oscillation problem. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही यू कैन फाइंड द ओमेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो उसका ओमेगा निकालना है, पहले हम लोग लिखेंगे उसका लेग्रेंजियन. लेग्रेंजियन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिसेस. और फिर हम लोग उनको जो हमने मैट्रिसेस निकाले हैं उसको जब मैं इस सेक्युलर इक्वेशन में पुट करूंगी, उसको जब मैं इस सेक्युलर इक्वेशन में पुट करूंगी और वहां से एक ओमेगा का वैल्यू निकालूंगी, वहां से जो ओमेगा का वैल्यू निकलेगा that will be what, that will be my normal frequency. उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. तो लेट मी write a line for you. We will say that the value
of omega satisfying the secular equation is known as नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। They will give you a question and they will ask you to find the normal frequency of the small oscillations of the system. तो ये जो है ओमेगा की वैल्यू जो आपकी सेक्युलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओमेगा मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी सुना है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है किसी चीज की? नहीं ना। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो ऑलवेज टेक केयर कि अगर तुम्हारा वैल्यू सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और नेगेटिव आ जाता है ना, जस्ट डिस्कार्ड दैट वैल्यू। ठीक है? उसको आंसर कोट करने की जरूरत नहीं है कि माइनस आ गया तो माइनस भी लिख देता हूँ, नंबर मिल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे नंबर उल्टा कट जाएंगे। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ अनदर पॉइंट। अब कुछ पॉइंट्स थ्योरी के हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी क्वेश्चन में निकालना क्या है, उसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन करोगे कैसे? क्वेश्चन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। हम सीधा क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। पहले थ्योरी पढ़ो। ठीक है? थ्योरी पढ़ते हैं पहले। चलो, नाउ द मिनिमम वैल्यू, the minimum value of omega is known as the fundamental frequency. Okay, this is very similar to स्टैंडिंग वेव्स, राइट? जब हम स्टैंडिंग वेव्स पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती थी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी जो मिनिमम वैल्यू आएगा ओमेगा को, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। याद करना आसान है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी जब ओमेगा सॉल्व, जब ओमेगा निकालोगे तो क्या करोगे? मैट्रिक्स से ओमेगा निकाल रहे हो ना, तो जितने डायमेंशन का मैट्रिक्स होगा उतने ही ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड जो उससे हायर वैल्यूज होंगी, ठीक है, उससे जो हायर वैल्यूज हैं, नेक्स्ट हायर वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड एज ओवरटोन्स। ओके, मतलब जो सबसे मिनिमम है दैट इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो लेट अस से जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 1 है। दिस इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट जो है उसको तुम लोग क्या बोल रहे हो? फंडामेंटल। ओमेगा 2 जो उससे बड़ी है लेकिन ओमेगा 3 से छोटी है, लेट अस से मेरे को तीन मिलती हैं। ओमेगा 1 सबसे छोटी है, ओमेगा 2 बीच की है और ओमेगा 3 उससे बड़ी है, सबसे बड़ी ओमेगा 3 है। तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस विल बी माय सेकंड ओवरटोन। एंड सबसे छोटी क्या है? लोएस्ट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये इतने डिटेल में मुझे पढ़ाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सब आसान है समझना, है ना? मतलब बच्चे थोड़ी है कि छोटी छोटी चीज समझाएं। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? लेट्स मूव ऑन टू वन मोर थिंग। ओके ओके, अनदर पॉइंट। अगर मेरे पास सपोज मैं मैट्रिक्स सॉल्व कर रही हूँ और मैं जो ओमेगा की वैल्यूज निकाल रही हूँ वो दो बराबर आ जाती हैं, है ना? अगर मैं कहूँ कि जो ओमेगा आई की वैल्यू है अगर वो ओमेगा जे की वैल्यू के इक्वल आ गई, इफ ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा जे, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड द डीजेनरेट फ्रीक्वेंसी, राइट? दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड डीजेनरेट फ्रीक्वेंसी। आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से समझो ना कि अगर दो आइगन वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो वो क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है ना आइगन वैल्यू। दैट इज द डीजेनरेट आइगन वैल्यू। और अगर ओमेगा आई किसी भी ओमेगा जे से मैच ना करे, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली और वो यूनिक है और कोई फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं कर रही, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दैट विल बी माय नॉन डीजेनरेट फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, दैट विल बी माई नॉन डिजेनरेट फ्रीक्वेंसी। इतना आ गया समझ? नाउ लेट अस मूव ऑन टू नॉर्मल मोड्स। जिस तरह एक आइगन वैल्यू के साथ एक आइगन वेक्टर अटैच होता है ना, हर एक आइगन वैल्यू का अपना एक आइगन वेक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि इट इज यूनिक। आइगन वेक्टर तो आप हो सकते हैं, अगर डीजेनरेट है तो यू डू नॉट हैव अ यूनिक आइगन वेक्टर। जैसे हर एक आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होता है, सिमिलरली आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ एक नॉर्मल मोड अटैच कर देते हो। नॉर्मल मोड इज वेरी 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 सिमिलर, और मतलब वेरी सिमिलर टू आइगन वेक्टर, ठीक है। सो वी हैव नॉर्मल मोड्स। लेट अस सी व्हाट दीज नॉर्मल मोड्स आर, ठीक है। तो नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं? तो अभी हमने अपनी सेक्युलर इक्वेशन लिखी, द सेक्युलर इक्वेशन वाज वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इज इक्वल टू 0। दिस वाज माय सेक्युलर इक्वेशन, और हमें जो ओमेगा मिला दैट वाज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब मुझे पता है कि जो कॉलम वेक्टर, ठीक है, द कॉलम वेक्टर which will satisfy the equation. Which equation? The equation is Vij minus omega square Tij, and we have some xi which is the column vector is equal to 0. अगर आपका कॉलम वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ओमेगा इज इक्वल टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जिस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे मैं निकालना चाहती हूँ, उस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे अगर मेरा एक ये कॉलम वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड नॉर्मल मोड conjugate to that normal frequency. Then what we will say? We will say that xi is the normal mode conjugate to normal frequency omega. This is my normal mode. तो क्वेश्चन समझ आ गया? ओमेगा तक कैसे निकालना था मैंने बता दिया था। लेग्रांजियन लिखेंगे, मेट्रिसेस निकालेंगे, मेट्रिसेस निकालने के बाद ओमेगा निकालेंगे सेक्युलर इक्वेशन में पुट करके। अब जो ओमेगा आ गया, उस ओमेगा को हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई। और ये जो एक्स आई है, ये मेरे नॉर्मल मोड्स होंगे। बहुत बार ही होता है कि आपसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, मोड्स नहीं पूछते। नहीं पूछा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालनी। पूछा तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो जरूरी नहीं है कि करके ही आना है नॉर्मल मोड। अरे पूछा नहीं है तो क्यों करना है, फ्रीक्वेंसी निकालो और खत्म करो। लेकिन अगर पूछा है तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो निकालोगे ना, डेफिनेटली निकालोगे। तो that is my how to find the normal modes. Now how to normalize the normal modes. Normalize करना भी तो जरूरी है ना। तो जो normal modes हैं, always remember हमें normal modes कैसे find करने हैं, ठीक है। What are the properties of the normal modes? हमें कैसे normal modes find करने हैं? That is we need to find, हमें कैसे find करने हैं? हमें find करने हैं linear independent normal modes, ठीक है। तो हमें लीनियर मोड्स फाइंड करने हैं और इंडिपेंडेंट नॉर्मल मोड्स फाइंड करने हैं, ओके। एंड ये जो नॉर्मल मोड्स हैं, वन मोर थिंग, दे फॉलो अनदर इक्वेशन, ठीक है। दे फॉलो अनदर इक्वेशन, दैट इक्वेशन विल हेल्प यू टू नॉर्मलाइज द नॉर्मल मोड। जो आपका आइगन वेक्टर आएगा, एक कॉलम वेक्टर आएगा, उस कॉलम वेक्टर को आपको नॉर्मलाइज तो करना पड़ेगा ना। हमेशा वेक्टर को आप नॉर्मलाइज फॉर्म में देते हो, तो वो जो आप उसको नॉर्मलाइज करोगे, उसकी नॉर्मलाइजेशन में आपको हेल्प करेगी एक इक्वेशन विच इज एक्स आई ट्रांसपोज टी आई जे एक्स आई is equal to 1. So your xi, which is the normal mode, will also obey this equation.
it will also obey this equation. And this equation will help you to normalize the column vector. आपको normalization of the column vector में ये वाली equation help करेगी. मैं आपको अभी ही बता रही हूँ. अभी हमने question solve करने start नहीं करे. But I am telling you कि जैसे जैसे मैं आपको explain कर रही हूँ वैसे वैसे हमें question में आगे बढ़ना है. ठीक है? Fine. Now the best way to find this normal modes, अगर आप चाहते हो कि आपकी normal modes linear भी हो, independent भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? We should always try to find orthogonal normal modes. हमें कोशिश करनी है कैसे नॉर्मल मोड्स फाइंड करने की? ऑर्थोगोनल नॉर्मल मोड्स फाइंड करने की. अगर आपके मोड्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी. अगर आपके ऑर्थोगोनल है वेक्टर्स तो वो लीनियर भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे. ठीक है? एंड एट लास्ट थिंग, क्योंकि हमें लीनियर फाइंड करने हैं तो जो आपके नॉर्मल मोड्स हैं मस्ट फॉर्म a linear basis. They should form linear basis. So they should always form linear basis. Fine. Now, yes. Now, before starting with another example, we will start with the example in the next class. Let's just do with the theory. वरना बहुत ज्यादा हो जाता है एक दिन में और फिर इतना grasp करना मुश्किल हो जाता है. I would like to give you all a small gist of what we did right now, which we will also do in the next class for sure. Okay, so things to remember or things to keep in mind before starting the numerical is that we need to remember that the kinetic energy matrix is given by Tij is equal to, मुझसे पहले आपको याद होना चाहिए, del square T by del eta I del eta J dot. ये चीज याद रखनी है. Potential energy matrix is given by Vij is equal to del square V by del eta I del eta J. और क्या याद रखना है? सेक्युलर इक्वेशन को याद रखना है. सेक्युलर इक्वेशन इज व्हाट? सेक्युलर इक्वेशन इज Vij minus omega square Tij is equal to 0. यहां से आपके पास जो ओमेगा निकलेंगे these will be the normal frequencies. अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है स्टॉप हियर. इफ यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, स्टॉप हियर. If you have been told to find the normal modes which are conjugate to the normal frequency, what we will do? For omega is equal to omega I. Let us say omega is our normal frequency. Then how will we find the normal mode conjugate to this? We will put Vij minus omega square Tij xi is equal to 0, where xi is what? Xi is the normal mode conjugate to omega I. It is the normal mode which is conjugate to omega I, and it also satisfies which equation? It satisfies that if I have xi transpose Tij xi is equal to 0. It will also satisfy this equation, and we need to find normal modes such that they are linear, independent, and form a linear basis. And all these three things will automatically satisfy if we find orthogonal normal modes. Okay, so this is the end of your theory for the small oscillation. The part 1 was in the previous video. This is the part 2. In the next class, we will be doing examples of small oscillations, the kind of numericals you see in your exams, be it your graduation exams, be it your master's exams, or be it your NET, IIT JAM, GATE. You see these types of questions in all the exams.
So next class is the most important class. Next or next and next to next class, because I will be dividing the numericals in two short classes. So do attend those classes. I hope you have understood the theory of small oscillation, and we will meet in the next class. Thank you so much for being with me, and I hope I could help you all to understand this topic. Okay. Bye bye, guys. And ta-ta. Oh, also, do like my video, comment my video if you like it, do share it with your friends, and do subscribe my channel. Yeah, I'm new to this YouTube, so अभी मुझे time लगेगा अच्छे से याद करने में these lines. But okay, चलो, bye bye, guys.